Today we start the chapter 14, Fundamental Concepts of Geometry. There are some definitions are given in the book. You can learn from there. Just we can see what definitions is given. Point. Our first definition is point. Definition is given that a point is mark of a position. A smallest dot represents a point. It is denoted by a capital letter A, B, C like this. Means कोई भी एक डॉट है जिसको अपन कैपिटल ए या कैपिटल बी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एक डॉट है वी कैन से दैट इट इज ए पॉइंट. नेक्स्ट लाइन. व्हाट इज लाइन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अलोंग द एंडलेस स्ट्रेट लाइन. एक जो लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है. सपोज 2 पॉइंट्स ये है, इधर भी वो इंक्रीज हो रहा है, इधर भी जा रहा है, मींस इट इज अ एंडलेस. देन वी कैन से दैट इट इज अ लाइन. कभी भी वो खत्म नहीं हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बन रहा है, देन इट इज अ लाइन. नेक्स्ट लाइन सेगमेंट. सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, मींस वो कभी भी खत्म नहीं होता, इट इज एंडलेस. एंड लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड लेंथ. इसका कोई भी दो पॉइंट जो है वो फिक्स होंगे, देन वी कैन से दैट इट इज अ लाइन सेगमेंट. Line segment is represented by this and line is represented by this side. Then ray. Ray के लिए definition क्या है? Ray is a part of a line which starts from a fixed point and moves endlessly. एक fixed point से start होता है ray, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता है. Then we can say that it is a ray and we can represent it by this sign. एक जगह fixed point होगा, एक जगह endless point होगा. Then parallel line. Two lines never intersect to each other. दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, then we can say that it is a parallel. इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मींस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन. Two lines can meet each other, then it is known as intersecting line. कोई भी दो लाइन आपस में अगर मिल जाती है, कट करती है दूसरे को, then we can say that it is an intersecting line. Then next, closed and open figure. What is closed figure and open figure? Figure which is closed to every side. जिस पॉइंट से डायग्राम स्टार्ट होता है वहीं पर आगे खत्म होगा, then we can say that it is a closed figure. And suppose diagram is open from any side, then we can say that it is an open figure. Then come on exercise 14.1. Exercise 14. First question. What is first question? True and false. So, a point has definite length. Point का कुछ definite length होता है? No, point has no length. So it is a false. B. A line has definite length and indefinite length and definite breadth. No, line has no breadth, so it is also false. C. A ray has one end point. Ray में एक end point होता है. Yes, it is true. See the definitions from book जैसे हमने example देखा है. A line segment has two end point and definite length. Yes, line segment के two end point होते हैं. It is also true. Distance between two parallel line is always the same. Yes, parallel line का distance same होगा.
Second question, how many endpoints are there in the following? रे के लिए कितने endpoints होंगे? Only one, क्योंकि वन साइड तो वो एंडलेस जाता है। बी, लाइन सेगमेंट तो फिक्स पॉइंट के बीच में होता है, मींस इट हैज टू endpoints। सी, लाइन तो क्या है, दोनों साइड एंडलेस है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, सो इट हैज नो endpoint मींस इट हैज जीरो endpoint। थर्ड, it is a diagram. What we have to do, how many line segments are there in the following figure? We have to count the line segment between the following figure. line segment क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में बनने वाले डायग्राम को अपन लाइन सेगमेंट बोलेंगे। सपोज ए इज अ पॉइंट, बी इज अ पॉइंट, देन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो इस टाइप से कितने लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, we have to count। एक तो ए बी हो जाएगा बिकॉज इट इज मेड बिटवीन टू पॉइंट्स। नेक्स्ट बी सी, नेक्स्ट सी डी, नेक्स्ट डी ए। तो चार लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। देन ए एंड ओ दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच बनने वाला ए ओ एक लाइन सेगमेंट होगा। देन सेम ओ सी या सी, दो लाइन सेगमेंट ये होंगे। सेम दो लाइन सेगमेंट यहाँ से मिलेंगे, डी ओ एंड बी ओ, तो फोर लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। अब ए से सी ये भी दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच में पूरा जो है इसको भी एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। वैसे बी से डी इसको भी पूरा लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। सो इट हैज टोटल 10 लाइन सेगमेंट। Then next, fourth, which of the following are closed figure? Closed figure अभी देखा अपन ने, यहाँ से डायग्राम में देखे आप ए और सी डायग्राम दिख रहे हैं, they are closed figure. A is made like this and C is this. Both are closed figure. Remaining two figure is open figure because they are open. Then fifth, using the adjoining figure name the pairs। जो एक डायग्राम दिया हुआ है अपने को, उसको देख के फिगर्स का नाम देना है। इट इज एम एन एल, इट इज द फिगर। देन ए में अपने क्या बताना है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन पे ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही है, तो आंसर इज एम एंड एन, लाइन आर पैरेलल। बी, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मींस क्या होता है, दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना, और इस साइड का मीनिंग 90 डिग्री होता है। सो एल एंड एन में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, फर्स्ट हो जाएगा एल एंड एन। एल और एन में भी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो सेकंड हो जाएगा एल एंड एन। सी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस भी वही होता है, दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करना, दोनों उसी जगह इंटरसेक्ट हो रही है। सो एल एंड एम, L and N, both lines are intersecting lines are also. Now, sixth, fill in the blanks. Fill in the blanks, you can solve it. Then seventh, give two examples from your surrounding of the following. आपको दो examples देना है point. Point के examples क्या होगा? Point of a pen या point of a pin, ऐसे कोई भी दो examples दे सकते हैं। Line segments, line कहाँ बन रही है? कॉर्नर ऑफ ए टेबल, कॉर्नर ऑफ ए चेयर, इस टाइप से लाइन सेगमेंट्स है। तो एग्जांपल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देन कम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8। Given a line segment AB, draw the figure for the following। एक लाइन सेगमेंट दिया है अपने को A and B, and
we have to draw the figure, that is ray AB. ए में क्या बनाना है अपने को, रे AB बनाना है। तो रे क्या होगा, रे इस टाइप से होगा AP, और we can say that AB is the ray means B के आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, उसी को अपन रे बोलते हैं। एक फिक्स पॉइंट होगा अपना B, B में है रे BA। लाइन तो इसी टाइप से बनेगा आपका A एंड B। रे है मींस A BA, इधर से आएगा इधर इंक्रीज हो जाएगा, सो इट इज रे BA। देन लाइन AB, लाइन AB क्या होगा, लाइन तो दोनों साइड एक्सटेंड होता है, सो इट इज ए AB and we can extend here and here also, so it is a line। रे AB line। then 9th question, which of the following are intersecting line, इसमें से intersecting lines कौन से हैं। तो आप फिगर देख के बता सकते हैं कि ऐसे दो पॉइंट्स जो ऐसे दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, देन वी कैन से दैट इट इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन। सो तो पॉइंट ए एंड सी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, सो ए एंड सी आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड रिमेनिंग टू आर पैरेलल लाइंस। सो एक्सरसाइज 14.1 is completed. Now come on next exercise 14.2. So 14.2 स्टार्ट करने के पहले भी कुछ पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट फ्रॉम वन पॉइंट वी कैन ड्रॉ मेनी लाइन्स। एक पॉइंट से अपन बहुत सारी लाइन बना सकते हैं। कैसे, सपोज इट इज ए पॉइंट, ये इस टाइप से अपन लाइंस बना सकते हैं इनडेफिनेट। फ्रॉम 2 पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन। अगर दो गिवन पॉइंट से पहले से, सपोज इट इज ए पॉइंट ए, इट इज ए पॉइंट बी, इन दोनों को मिला के एक ही लाइन बना सकते हैं, इससे अलावा कोई दूसरा लाइन नहीं बनेगा। देन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट मींस दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो कि एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में बनने वाले पॉइंट्स को अपन बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, then we can say that it is a, it is not in a straight line, all the points, and we can say that it is a non-collinear point. Next, concurrent line, more than 3 line या more than 2 line, 3 or more line, 1 2 3, more than 3 line meet at a point, then we can say that it is a concurrent line. Non-concurrent line, more than 3 line cannot meet at a point, जब 3 lines या 3 से more line एक point पर meet होगा, then we can say that it is a concurrent. Same, it is a 1 line, it is 2 and it is 3 line. All the 3 lines do not meet at a point, then it is a non-concurrent lines. Then come on the questions. First question. True false. Infinite number of line can be drawn passing through a point. एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बना सकते हैं। Yes, it is true.
टू लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से टू लाइन बना सकते हैं? नो, इट इज ओनली वन लाइन। टू डिफरेंट लाइन आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए सिंगल पॉइंट। यस, दो लाइन जो है या तो वो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी, दोनों में से एक होगा। इट इज ए ट्रू। कॉन्करेंट लाइन आर ऑलवेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। यस, कॉन्करेंट लाइन जो होगी आपकी, कॉन्करेंट लाइन ऑलवेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। यस, कॉन्करेंट लाइन सभी एक पॉइंट पे मीट करेगी। इट इज ए ट्रू बिकॉज़ कॉन्करेंट है एक सिंगल लाइन होने वाला है। थ्री और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ द लाइन इज सेम प्लेन। नो, कोलिनियर बिना प्लेन के भी हो सकता है, बस उनकी लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। सेकंड, लाइन L, M, P and Q intersect at point A and what they are called। यदि फोर लाइंस आपके एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं then we can say that it is a congruent। Third, given point A and B, how many lines can be drawn passing through point A, point B? कोई भी एक पॉइंट है, वहां से अपन इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। पॉइंट बी से भी इनफाइनाइट बना सकते हैं। कोई पूछा है कि पॉइंट ए से कितने लाइन बना सकते हैं? इनफाइनाइट। पॉइंट बी से भी इनफाइनाइट। सी में पूछा है पॉइंट ए बी, दोनों पॉइंट्स को मिला के कितना लाइन बनेगा? दोनों पॉइंट्स को मिलाकर 1 पॉइंट बनेगा। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, given point A and B in the adjoining figure, draw a point P such that, एक लाइन गिवन है अपने को, that is इस टाइप से A और B एक फिगर दिया हुआ है। अब क्या करना है अपने को? The 3 points are collinear, A and B are adjoining figure, draw a point P such that। अब अपने को इस A और B के बीच में क्या ड्रॉ करना है? P ड्रॉ करना है। तो A और B तो इज इट इज रहेगा। Then 3 points are collinear, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो, ऐसे आपको P पॉइंट बनाना है। तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या था? ऑल द पॉइंट्स कम ऑन ए लाइन। तो अपन P पॉइंट अगर यहां बना देते हैं देन वी कैन से दैट इट इज ए कोलिनियर। A और B फिर से डायग्राम इज सेम। अब क्या बोला है? 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए लाइन। ये दोनों तो पहले से लाइन पे है, तो P पॉइंट बनेगा वो अपन लाइन से बाहर बना देंगे। सो ऑल द 3 पॉइंट डू नॉट लाई ऑन ए लाइन, तीनों पॉइंट्स लाइन पे नहीं है। नेक्स्ट, P is between A and B, 3 points are collinear। P को ऐसे ड्रॉ करना है कि A और B के बीच में भी आए और कोलिनियर भी हो। तो अपन यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो P A और B के बीच में भी है और कोलिनियर भी है। Fifth question is also same। So our exercise 14.2 is completed। I think you have cleared chapter number 14. Practice more questions from the book.